This is the positive side of a large population. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. Okay, stop here. Anna, what is written here? When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. In the same manner, as we develop the physical capital, and the development of physical capital is known as physical capital formation. In the same manner, if there is investment in human being, in making him more skillful and trained, then it is known as human capital formation. है ना? जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे हम एक फैक्ट्री तैयार करते हैं, है ना? एक फैक्ट्री बन के तैयार हो गई तो वो कितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। उसी तरह से अगर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके हेल्थ पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसके स्किल डेवलपमेंट पे, तो वो क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना? तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमेशा एक बर्डन की तरह उसको नहीं देखना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स शुड नॉट बी, ह्यूमन पॉपुलेशन शुड नॉट बी seen as a burden always. It should be seen from its positive side also. If take the example of India. India is a country of very big population, but if this whole population is converted into human resource by providing education, health facilities, special training, development of skills, etc., then the population will become an asset. Asset. Okay, so it is a workforce, and this workforce is useful on world over. Okay, all over the world, the workforce can be used, and it is the asset for India, and people are helpful in the other part of the world also. So it depends on the development of the personality, mental development, fitness of health, all these things. ठीक है ना? तो जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि which resource is most important and why, you will say that it is the human resource, which is very important among all the resources, because all other resource find its use due to the, because with the help of human resource, the other resources can be developed. It is the human being who develops the raw material into more useful material, commodities, right? So human beings are creating development on the earth by utilizing the primary products. So it is the human being who is the most important resource on the earth's surface. Soil is also a resource, water is resource, air is resource, labor, mineral, forest, wildlife, all are the example of resources. But soil is of no use if the people are not going to cultivate it. So it is the people who is the most important resource. ठीक है ना? इसको आप एग्जांपल से भी समझा देंगे। अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन आया तो शॉर्ट में लिखें, और अगर 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ गया तो थोड़े एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उधर जो एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है। सबसे पहले तुम बताओ व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड पैराग्राफ का रीडिंग करो, पेज नंबर 24, सेकंड कॉलम, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 24. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Sila is not interested in working outside of Ask anyone to read. अच्छा, वन एट ए टाइम, अभी रुक जाओ। आदित्य कौंडिल्य तुम रीडिंग करो। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू, Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Sila is not interested in working outside her domestic domain. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ, or Sila can be counted as unemployed.
The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Circles Hmm. brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. Sakal's mother Sila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Hmm. Sakal's grandparents cannot be called unemployed. Hmm. Because they are above 59 years of age. हाँ, Yes, ma'am. तो ये देखिए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन एंड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. दिस स्टेट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. है ना. अगर लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है और उनकी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. Unemployment. लेकिन इसमें कौन कौन नहीं आता है. अगर काम नहीं भी कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से लोग नहीं आते हैं. जो बच्चे हैं वो नहीं आते हैं, मतलब 15 ईयर्स से नीचे Above वाले नहीं 59 आते. years. ठीक है ना. और 59 ईयर्स से ऊपर वाले को हम ओल्ड पीपल मानते हैं, रिटायर्ड पीपल मानते हैं. तो उन वो भी जो काम करेंगे उसको हम एम्प्लॉयमेंट में गिनती नहीं करते हैं. ठीक है ना. और जैसे जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, मदर हैं, घर का काम कर रही हैं, वो भी बाहर निकल के कोई मनी अर्न करने के लिए काम नहीं कर रही है, तो इसलिए उनके काम को भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं रखा जाता. समझ गए ना. ये 3 तरह के लोगों को हटा करके, और तब बाकी जो लोग विलिंग हैं काम करने के लिए और उनको नहीं मिल रहा है कोई जॉब, तब वो स्टेट जो है ना उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है. अब तुम में से एक बताओ, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment Seasonal happens. unemployment happens when people are not able to find jobs during Of the year. Some month of the year. Example, the people dependent on agriculture is an For example, unemployment happens agriculture. when people are unable to Season. find any work during any particular month of the year. हाँ वेट हियर, ऐसे तो पढ़ोगे तो कोई किसी का नहीं सुनेगा, है ना. तो अभी हम नाम बुलाते हैं. अपना माइक ऑन रखो, जिसको बोलने का ये है. जारा रहमान, यू स्टार्ट रीडिंग. व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. हाँ, और इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे बताओ. पीपल डिपेंडेंट अपॉन People dependent upon agriculture agriculture usually face such kind of problem. एग्रीकल्चर में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का. Yes, ma'am. Because in all the months there is no agricultural work. In some month there is sowing, in some month there is harvesting, but there are some time where there is no work in the agricultural field. So this type of unemployment is known as seasonal unemployment. जब किसी पर्टिकुलर सीजन में लोग खाली बैठे रहते हैं, और इंडिया के विलेजेस में, रूरल एरियाज में ये बहुत है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. So certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. तो एग्रीकल्चर में ही इसका एग्जांपल मिलता है. तो कोई भी आंसर लिखो ना, और इसका एग्जांपल है तो जरूर एग्जांपल ऐड करना चाहिए. अच्छा, फिर एक कौन बोलने के लिए तैयार है, अनम्यूट करो. गरिमा, you say Yes, ma'am. what is disguised unemployment. Disguised unemployment, people appear to be employed while actually they are not adding to the productivity. For example. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work which requires, suppose the work which requires only 5 people, the work requires the service of 5 people, but 8 people are engaged. So what are these 3 extra people? They are disguised unemployment. हाँ, ठीक है ना, कि अगर 5 ही लोग का काम है और उसमें 10-10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बाकी 5 बच गए Employment in a particular disguised sector. unemployment में आ गए. तो ये हो गया, है ना. Now come to the second column. In case of, यहाँ last line से देखना. In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degree are not able to find job. If the people are educated, like they are
have done matriculation or graduation, etc., but they are not getting job. Then what happens? It Unemployment. is known as unemployment. Unemployment happens there. So the educated people, yes, educated people are sitting without any job and not able to earn money, are not able to earn money, then it is known as educated unemployment. अब देखो यहाँ एक पैराडॉक्स देखो, पैराडॉक्स मतलब एक contradiction. A paradox manpower situation is witnessed is surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. ठीक है, जैसे जो educated people है ना, उसमें surplus लोग हो जाते हैं, unemployed लोग कितने हैं, surplus हैं, और जो ऐसे जो unskilled worker जहाँ चाहिए वहाँ काम करने वाले फिर कम हैं. Shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skill required for economic growth. ठीक है, unemployment among technically qualified person on one hand. मान लो बहुत सारे इंजीनियर ग्रेजुएट बैठ जाते हैं, है ना, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और उनको अपने उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाता है, तो क्या होते हैं, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो गए. लेकिन वही दूसरी तरफ देखो तो टेक्निकल स्किल वाले लोगों की कमी है, हाँ, जो फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करें हर तरह के, तो उस तरह के लोगों की कमी भी है. तो देयर इज अ डर्थ मीन्स स्कैर्सिटी ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो टेक्निकल स्किल वाले बहुत लोग चाहिए. लोअर लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब से काम नहीं चलता है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है ना. फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, हर जगह काम करने वाले लेबर क्लास के स्किल्ड पीपल चाहिए जो कि टेक्निकली स्किल्ड हो, तो ऐसे लोगों की कमी हो जाती है. तो इसी को क्या कहते हैं, जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन. एक तरफ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है सो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, जिसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहते हैं, और दूसरी तरफ जहां स्किल की जरूरत है, मैनुअल स्किल के साथ जहां काम होता है उसकी जरूरत है, उसमें लोगों की कमी हो जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ manpower resource. People who are an asset for the economy turn into a liability. तो अनएम्प्लॉयड लोग बैठेंगे तो तभी उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि काम करते रहेंगे, तरह तरह के डेवलपमेंटल वर्क में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तब तो वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं तो क्या हो गया, वैसा ही पॉपुलेशन लाइबिलिटी होता है. लाइबिलिटी मतलब बर्डन. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. और इतना ही नहीं होता है, इसके साथ क्या क्या होता है, लोगों के मन में होपलेसनेस आ जाती है, डिस्पेयर, बहुत निराशा, हताशा आ जाती है ना, अगर बिना काम के बैठे रहेंगे तो. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social wastage. ठीक है, अब ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तुम चाहोगे कि वो किसी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो लेबर का काम करें तो वो तो नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उनकी वैसे ट्रेनिंग ही नहीं हुई है. तो इस तरह से वो ना जिस तरह का, जिस फील्ड में उनको काम चाहिए वो मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल अनफिट है काम करने के लिए. तो इस तरह के लोग बहुत डिस्पेयर में, होपलेसनेस में अपना लाइफ लीड करते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत जरूरी चीज है हर ह्यूमन बीइंग के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. कंट्री के ऊपर क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के चलते. द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. अब सपोज करो कि घर में एक ही है अर्निंग मेंबर और बाकी पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या होगा कि एक वर्किंग जो पर्सन है उसके ऊपर सारे का लोड आ जाएगा. तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा और अर्निंग पॉपुलेशन कम होगा. दो तरह के पॉपुलेशन होते हैं ना इसमें, वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन.
तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी। डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं? छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते Ma'am, हैं, बूढ़े children लोग and the डिपेंडेंट old होते हैं। Educated people. unemployed Children, people. old और girls. अनएम्प्लॉयड Old लोग people भी and डिपेंडेंट children. Children and हाँ, so dependent are mainly of three types. One are the population of children who are dependent on their parents, ठीक है? And the other are the old people, grandfather, grandmother, like these people are dependent because of their age. And some people are educated, unemployed, so they are also dependent. In this manner, the burden on working population increases. इंडिया में ऐसा ही है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स का ये लोड रहता है, मतलब बहुत लोगों का उसको खर्च चलाना होता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब जब अर्निंग मेंबर कम होंगे तो घर में क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटेरियोरेट करेगा, मतलब खराब होगा। व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ bare subsistence level, there is general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. अब जहां पर इनकम कम रहेगी तो वहां के का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा तो उसमें क्या है कि फूड पर भी इफेक्ट आ जाता है, हेल्थ स्टेटस पर भी बुरा असर आ जाता है, क्योंकि जहां इनकम कम है वहां हेल्थ पे लोग खर्च नहीं कर पाते हैं ज्यादा। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy, है ना? एक growing economy में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और जो इकोनॉमी डिप्रेशन वाले स्थिति में है, वो नीचे की तरफ जो इकोनॉमी जा रही है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसका मतलब है ना। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, जो रिसोर्स है हमारे पास उसकी भी वेस्टेज होती है ना, क्योंकि उसको हम अपने एम्प्लॉयमेंट के थ्रू यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. ठीक है, चाहे तो ह्यूमन बीइंग जो है एक रिसोर्स की तरह होंगे, और नहीं तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी कि वो एक लाइबिलिटी हो जाएंगे, बर्डन हो जाएंगे, है ना। तो यही तो बात है। अब इंडिया में ना ये लाइबिलिटी टाइप का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, समझ गए ना, क्योंकि बहुत लोग पॉवर्टी में रहते हैं तो उनके कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एजुकेशन नहीं हो पाती है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं हो पाती है। इस तरह से इंडिया में ना पॉवर्टी के वजह से पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाइबिलिटी है, और उसी पॉपुलेशन को अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये पूरे कंट्री के लिए बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed, है ना। तो कम अर्निंग वाले लोग इंडिया में बहुत हैं। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. बहुत मीगर इनकम, बहुत कम वेजेस पे काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, तो कहने के लिए तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो क्या है, इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम, वो इनकम उनके लिए सफिशिएंट नहीं है उनके लिविंग के लिए। अब जब सफिशिएंट नहीं होगा तो किन किन बातों पे असर पड़ेगा? हेल्थ खराब होगा, सभी को बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, सभी को अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेंगे, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे भी तो फिर वहां से ड्रॉप आउट होने लगेंगे जल्दी जल्दी, है कि नहीं, कोई हायर एजुकेशन में नहीं जा सकेगा, ये सारी बातें हो जाएंगी। तो मीगर इनकम वाले बहुत लोग हैं, मतलब कहने को तो एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, लेकिन वो इनकी इनकम सफिशिएंट नहीं है, नॉट एडिक्वेट। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। अब बहुत लोग के ऊपर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको और कोई अपने पसंद का काम मिला भी नहीं है, तो इस तरह से वो फोर्स्ड वर्क करते हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. ठीक है ना। अब गरीब लोगों की क्या हालत है इंडिया में कि खाली बैठ नहीं सकते हैं, तो वो
छोटे से छोटे इनकम में भी लग जाते हैं और वही काम करने लगते हैं और वो जानते हैं कि ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर भी जब अनएम्प्लॉयड रहने से तो अच्छा है कि एकदम लिटिल इनकम पे भी काम करते रहें। हालांकि वो अपने लाइफ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, हर चीज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी खाली बैठने से तो अच्छा है। देयर अर्निंग गिव्स देम अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब किसी तरह से खा पी सकते हैं और खाना वाना चला लेंगे और बाकी काम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ना बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, बीमार पड़ने पर अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे पाएंगे, ये सारी बातें। ठीक है ना? अब यहाँ से रीडिंग करो तो तुम सौम्या। Moreover, the employment structure. Yes, ma'am. Moreover, Soumya? the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though not everyone is really needed. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce reduces the hardship of unemployment in the rural sector. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of work. हाँ, अब इंडियन विलेजेस की क्या हालत है कि वहाँ जितने लोग हैं विलेज में, एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मान लो 5 ही आदमी की जरूरत है, अब वहाँ 7 आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, उसी काम में लगे हुए, तो वो क्या हो गया? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर में बहुत है। तो काम का बंटवारा तो कर लेंगे वो, दे विल शेयर द वर्क बट द अर्निंग कांट बी इंक्रीज्ड। ठीक है ना? उनकी टोटल अर्निंग थोड़ी बढ़ जाएगी। काम तो भले सबको मिल गया, लेकिन अर्निंग नहीं बढ़ेगी। This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty. इसीलिए पॉवर्टी नहीं घटती है। Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. तो क्या हालत होती है कि इंडिया के में रहने वाले बहुत से स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ के लेबरर्स जो है ना, जब जो देखते हैं कि हम लोग ऐसे डिस्गाइज या अनएम्प्लॉयमेंट में कितना बैठे रहेंगे, तो वो अपने घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के निकल जाते हैं दूसरे शहरों की ओर जहाँ पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। सुनते हो ना कि बहुत सारे लेबरर्स पंजाब चले गए, तो हरियाणा चले गए, तो बड़ौदा और सूरत चले गए काम करने के लिए। तो इसको माइग्रेटरी लेबर्स कहते हैं, जो इंडियन विलेजेस से माइग्रेट करके दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ पे उन्हें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। Let us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. अब एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर है, और उसके अलावा क्या है? द मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। लेबर एब्जॉर्बिंग मतलब सबसे ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चर में। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because of disguised unemployment discussed earlier. ठीक है ना? अब जो disguised unemployment था गांव में, तो वैसे 4-4, 5-5 लोग हर फैमिली के निकल के चले गए, दूसरे जगह माइग्रेट कर गए, काम करने के लिए चले गए। Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. ठीक है? एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो एक्स्ट्रा लोग थे वो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, मतलब सेकेंडरी में चले गए, या टर्शरी में चले गए। टर्शरी मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगे और भी इस तरह के काम, ट्रेड का काम करने लगे। In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. जो small scale industries है ना, जिसमें बहुत सारे काम मैनुअली भी करने पड़ते हैं, छोटे छोटे मशीन टूल्स या सब हाथ से चलाने होते हैं, तो उसमें स्मॉल स्केल में ज्यादा लेबरर्स की जरूरत होती है। और जो बहुत लार्ज स्केल और मॉडिफाइड इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, तो वहाँ वर्कफोर्स की कम गुंजाइश है। So in case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक है, अब टर्शरी सेक्टर में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। तो टर्शरी में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? आर्यन बताओ, टर्शरी में कौन कौन से एक्टिविटीज का तुम एग्जाम्पल दे सकते हो? 5-6 एग्जाम्पल बताओ। आर्यन चौहान। ओम कुमार, तुम टर्शरी के एग्जाम्पल दो। मैम, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर से बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Business बैंकिंग, services. इंश्योरेंस कंपनीज, जॉब ऑफ टीचर, डॉक्टर, है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर में। ऑल द सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। अब देखो एक कहानी के माध्यम से, let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village. एक ही विलेज में पहले जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था उसको कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, वो एक स्टोरी से बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टोरी पढ़ो तो 5 मिनट समय बच रहा है लग रहा है ना? Yes, ma'am. देर, अच्छा रुको हम ही रीडिंग करते, शिवांगी वेट करो। There was a village inhabited by several families, है ना, एक विलेज के अंदर बहुत सारे फैमिली रह रहे हैं। Each family produced enough to feed its member. Each family met its need by the members making their own cloth. मतलब एक फैमिली के अंदर मेंबर्स ही मिलकर सारे काम कर रहे हैं, अपनी क्लॉथ भी बना रहे हैं, फूड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और उनका काम चल रहा है। One of the family decided to send one of its son to agricultural college. उन्हीं में से एक फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि अपने एक सन को वो एग्रीकल्चरल कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज दिए। The boy got admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro-engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow. अब देखो जो बाहर से ट्रेनिंग लेके पढ़ाई करके आ गया वो गांव के अंदर ना बहुत क्रिएटिविटी ला सकता है, गांव में अपने बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। तो उसने जो पढ़ के एग्रीकल्चरल कॉलेज से जो पढ़ के ट्रेनिंग लेकर आया वो इतने इम्प्रूव टाइप का एक प्लाव बनाया जिससे फील्ड की प्लाविंग बहुत अच्छी हुई और व्हीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। अब व्हीट का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो मार्केट में सेल करने के बाद सरप्लस मनी आ गया। अब जब मनी आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, तो लोग और भी, लोगों का ध्यान और भी तरफ जाएगा कि और भी हम क्या काम कर सकते हैं, और भी इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना? They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children. अब एक फैमिली का एक एग्जाम्पल देख करके सारे लोग इंस्पायर्ड हो गए और सब अपने अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहे। They requested the panchayat to open a school in the village. और स्कूल में पहले ट्रेनिंग शुरू हो गई, स्कूल में जो कि विलेज के अंदर ही खोला गया। They assured the panchayat that they would all send their children to